Once again, we welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन यानी अलौकिक संपर्क प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। And I also hope that you are continuing to keep safe and keep well during this time of crisis. मैं आशा करता हूं कि इस संकट के समय में आप सुरक्षित हैं और आप अपने घरों में हैं। Please stay safe and wash your hands regularly and follow the guidelines that is given by the government. आप घर में सुरक्षित रहिए, नियमित रूप में अपने हाथों को धोते रहिए और सरकार ने दिए हुए निर्देश का पालन करते जाइए। The corona updates that are coming out from the world or globally is not very encouraging. पूरे संसार से जो कोरोना के बारे में अपडेट आ रहे हैं ये तो सच में प्रोत्साहित करने वाले नहीं हैं। However, we have a reason to continue. चाहे कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ने के लिए हमारे पास में कारण हैं। Because this is not the end in itself. क्योंकि ये अपने आप में अंत नहीं है। There is much more that has to happen. और निश्चय और भी बहुत कुछ होना बाकी है। God's purposes for your life and my life is yet to be fulfilled. आपके और मेरे जीवन के लिए परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो तो अब तक पूरा नहीं हुआ है। Therefore, we can hope for something better. और इसलिए हम कुछ बेहतर की अपेक्षा कर सकते हैं। And it is that hope that makes us to stay on and continue all our efforts so that His kingdom can be expanded. और वही आशा है जिसके कारण हम आगे बढ़ सकते हैं ताकि परमेश्वर का राज्य जो है वो तो बढ़ते चले जाएं। We look forward to a better tomorrow. हम एक बेहतर कल के लिए अपेक्षा कर सकते हैं। And that is a hope we have in Christ. और मसीह यीशु में हमारे पास में यही आशा है। Because the hope in Christ is not just for this world. क्योंकि मसीह यीशु में जो आशा है वो तो केवल इस संसार के लिए ही नहीं है। Because when he left this world or before leaving this world, he made a statement like this. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये संसार छोड़कर जाने के पहले इस तरह से कहा था। In the Gospel of John, chapter 14, verse 1 and 2. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 1 और 2 में He says, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my Father's house there are many mansions or many rooms. If it were not so, I would have told you. I'm going to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me where I am." तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। So this verse is talking about something that Jesus is promising us. यहाँ पर ये वचन उसके बारे में कह रहा है जो यीशु यहाँ पर प्रतिज्ञा करते हैं That we will be with him in the place he is preparing for us. कि हम उस जगह पर रहेंगे जिस जगह को वो हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। See, right now we are living in this world. देखिए इस संसार में अभी हम जी रहे हैं And he is preparing a place for us. He is going to come back and take us to the place where he is. वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं और फिर वो वापस आएंगे ताकि हमें उस जगह पर लेकर जाए जहाँ पर वो हैं। That place is what we call heaven. और उसी जगह को हम स्वर्ग कहते हैं। And that place some people call, paradise. Before going to heaven, they spend the time in paradise. और ये तो ऐसी जगह है जिसे कुछ लोग कहते हैं ये तो स्वर्ग लोक है, यानी स्वर्ग में जाने के पहले की जगह है। So Jesus is preparing a place for us. यानी कुछ भी हो, यीशु हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहे हैं। And going into that place is very, very important, and it's a major decision we have to make while we are living in this world. और जबकि हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं तो उस जगह पर जाने का जो निर्णय है वो हमें अभी लेना है। In the book of Hebrews chapter 9 verses 27, the Bible says like this, "Just as man is destined to die once and after that to face judgment." इब्रानियों 9:27 में बाइबल इस तरह से कहती है, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। And when you look at the world, thousands of people are dying. और जब आप संसार में देखते हैं तो देखिए हजारों लोग इसमें मर रहे हैं। But this verse says, after death, we have to face judgment. लेकिन ये वचन कहता है कि मृत्यु के बाद हमारा न्याय किया जाएगा। And during that judgment, it is going to be decided whether we are going to be in the place Jesus is preparing for us or
whether we are going to be in the place without Jesus, where he is not there, his presence is not there, that we call as hell. वहां पर यह निश्चित किया जाएगा कि क्या हम उस जगह पर जाएंगे जो यीशु हमारे लिए तैयार कर रहे हैं, जहां पर यीशु है, या फिर हम उस जगह पर जाएंगे जहां पर यीशु नहीं है, जहां पर केवल यातनाएं हैं, सताव है, तकलीफें हैं, जिसे नर्क कहते हैं। So I want to share with you about this hope we have as Christians. तो विश्वासी के नाते हमारे पास में जो आशा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। A place called heaven. ये तो स्वर्ग नाम की जगह के बारे में है। And if I ask you how many of you would like to go to heaven, definitely all will want to. अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो निश्चय सभी लोग वहां पर जाना चाहेंगे। But what is heaven? How will life be in heaven? लेकिन स्वर्ग क्या है और स्वर्ग का जीवन कैसे होगा? And what do I know about heaven? और मैं स्वर्ग के बारे में क्या जानता हूँ? You know, the best way to know about heaven is to go there. देखिए, स्वर्ग के बारे में सबसे अच्छा जानने का जो तरीका है वो यही है कि हम वहां पर जाएं। And I don't think we have an opportunity or privilege to go there and come back. लेकिन मैं नहीं सोचता कि हमारे पास में ये मौका है या सौभाग्य कि हम वहां पर जाकर वापस आएं। So we depend on the word of God. इसीलिए हम परमेश्वर के वचन पर आधारित रहते हैं। God in his word has revealed to us what heaven is, what heaven will be like. परमेश्वर ने अपने वचन में हम पर यह प्रकट किया है कि स्वर्ग क्या है और स्वर्ग कैसे होगा। So the second best way to learn about heaven is what the word of God says. और इसीलिए स्वर्ग के बारे में सीखने का दूसरा सबसे उत्तम तरीका है कि परमेश्वर का वचन उसके बारे में क्या कहता है। And believing what the word of God says and accepting the facts that is given about heaven in the word of God. परमेश्वर का वचन हमें स्वर्ग के बारे में जो भी बताता है, उन तथ्यों पर हमें विश्वास करना है। So when I say I'm going to speak about heaven, it doesn't mean I have gone there and come back. और इसलिए जब मैं कहता हूं कि मैं स्वर्ग के बारे में आपको बताऊंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहां पर जाकर वापस आया हूं। I'm only talking about what the word of God says about heaven. मैं तो केवल यही बता रहा हूं कि परमेश्वर का वचन स्वर्ग के बारे में हमें क्या-क्या बताता है। You know, if the world is everything for us, we are more to be pitied than others. देखिए, अगर संसार ही हमारे लिए सब कुछ है, तो हम बहुत ही दयनीय परिस्थिति में हैं। Our hope is not just this world. हमारी आशा केवल इस संसार में ही नहीं है। You know, we all have something in our hearts. You know, our heart is longing for something beyond this world. आप जानते हैं, हमारा हृदय तो निश्चय इस संसार से कुछ परे ऐसी चीज की अपेक्षा करता है, लालसा करता है। In the book of Ecclesiastes, the writer very, very beautifully puts this idea. सभोपदेशक की किताब में जो लेखक है, बहुत ही सुंदर रीति से ये विचार बताता है। You know, the writer of Ecclesiastes is someone who has enjoyed everything possible in this world. सभोपदेशक का लेखक तो ऐसा व्यक्ति था जिसने संभवतः संसार की हर एक चीज का आनंद उठाया था। He was a king. वो तो राजा था। He had authority over people. उसके पास लोगों पर अधिकार था। He had gold, silver, and so much of this earthly benefits. उसके पास में इस पृथ्वी पर सोना, चांदी और बहुत सी चीजें और वस्तुएं He थी। had so many wives. और उसकी बहुत सी पत्नियां थी। Oh, think of anything that you want to enjoy in this world. Oh, he enjoyed everything. संसार की किसी भी चीज के बारे में आप सोचिए, उसने उसका आनंद उठाया था। But he put something very important in his writing. लेकिन वो अपने लेख में यहाँ पर महत्वपूर्ण बात कहता है। And he talks about the longing the human soul has. Every human soul has. लेकिन वो उस जिज्ञासा के बारे में कहता है जो हर एक मनुष्य में होती है। According to the writer of Ecclesiastes, it is God who has put that longing in our hearts. सभोपदेशक के लेखक के अनुसार ये जिज्ञासा तो परमेश्वर ने ही हमारे हृदय में रखी है। ये जिज्ञासा प्रभु ने हमारे अंदर रखी। Let me read it for you. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. आइए इसे पढ़ते हैं। सभोपदेशक अध्याय 3 वचन 11। He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the hearts of men. Yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वो आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। The word very, very clearly says, He has set eternity in their hearts. वचन स्पष्ट रूप में कहता है कि उसने अनंत काल उनके हृदय में रखा है। And the idea is,
the world is not the end, and there is something much more, much greater than this is there. यहाँ पर विचार ये है कि ये संसार ही सब कुछ नहीं है, लेकिन इस संसार से बढ़कर, इस संसार से बहुत बढ़कर कुछ है। So that permanent place, what we are prepared for, is something we are longing for. ये हमेशा की जो जगह है, ये तो ऐसा है जिसके लिए हम लालसा करते हैं। Apostle Paul says about that in Epistle to the Philippians chapter 3 verse 20. फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 वचन 20 में प्रेरित पौलुस इसके बारे में कहता है। He says, our citizenship is in heaven, and we eagerly await a savior from there, the Lord Jesus Christ. वो कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। Therefore, since our citizenship is in heaven, we need to know it, we need to understand it, we need to clearly study what the Bible says, and that can give us comfort and strength during this time. इसलिए जबकि हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, तो हमें उसके बारे में समझना होगा, हमें उसके बारे में पूरी तरह से जानना होगा, और वो इस समय हमें तसल्ली देगा। Therefore, it is vital that we know what heaven is from the word of God. और इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर का वचन स्वर्ग के बारे में क्या कहता है, उससे हम जान लें। As I share about this, I want you to kind of take a small break now for music. जैसे मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया, मैं चाहता हूँ यहाँ पर हम संगीत का एक छोटा ब्रेक लें। You know, the time for music is given so that you will be able to focus and think about what has been shared. हम संगीत का ब्रेक इसलिए देते हैं ताकि जो कुछ भी बताया गया उस पर आप गौर कर सके। A small break will help you to kind of recollect and think what has been shared. छोटा ब्रेक आपकी मदद करेगा कि जो कुछ भी बताया गया है उसके बारे में आप स्मरण करें, उसके बारे में विचार करते चले जाएं। Also, you can copy down our addresses and phone numbers and connect with us. और साथ साथ में आप हमारा पता और फोन नंबर लिख सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। So enjoy the music now. We'll come back to talk about heaven more. तो अभी स्वर्ग का आनंद उठाइए और स्वर्ग के बारे में चर्चा करने के लिए हम जल्दी ही लौट कर आएंगे। Take the music break now. तो आइए अभी म्यूजिक का ब्रेक लेते हैं। Welcome back after the music break, and I hope you enjoyed the music. संगीत के ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आशा है आपने संगीत का आनंद And we उठाया। were talking about a place called heaven God is preparing for us. हम स्वर्ग के बारे में चर्चा कर रहे हैं जहां पर प्रभु यीशु हमारे लिए जगह तैयार कर रहे That is हैं। something Jesus promised. We said in the first part that He said, I'm going to prepare a place for you, and I will come back and take you to be with me where I am. यही प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने की कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करके तुम्हें लेने के लिए वापस आऊंगा, ताकि जहां पर मैं रहूं वहां पर तुम भी रहो। So the first thing we need to understand about heaven is that it is a place God is preparing for His children. हमें ये बात तो समझनी ही होगी कि ये ऐसी जगह है जो कि प्रभु अपने लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। Let me go back to the verse we read earlier. तो आइए हमने जो पहले वचन पढ़ा था उसे फिर से देखते John हैं। chapter 14 verses 1 and 2. यूहन्ना अध्याय 14 वचन 1 और 2। Do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house there are many rooms. If it were not so, I have told you, I am going there to prepare a place for you. तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता So, हूँ। as I told you, the longing of every child of God is to be with Jesus Christ when they die. इसलिए मैंने आपसे कहा कि हर एक विश्वास करने वाला व्यक्ति तो मरने के बाद में प्रभु यीशु के साथ में रहना चाहता That है, is what is promised for us. और यही तो हमारे लिए प्रतिज्ञा की गई From है। the Old Testament times, you know, when the saints of God died, those people who believed in God died, they all went to heaven. पुराने नियम के समय से जितने भी लोग प्रभु पर विश्वास करते हुए मरे, पुराने नियम के संत, वो सब के सब स्वर्ग में गए हैं। We read about Elijah the prophet going into heaven in a whirlwind in 2 Kings chapter 2 verses 1 and 11. हम दूसरा राजा अध्याय 2 वचन 1 और वचन 11 में देखते हैं कि जो एलिया भविष्यवक्ता था वो तो स्वर्ग में उठा लिया गया। After his ministry was completed, उसकी सेवकाई पूरी होने के after बाद God fulfilled his purposes through Elijah, एलिया के द्वारा परमेश्वर ने अपना उद्देश्य पूरा करने के he बाद took up Elijah to heaven. वो एलिया को उठाकर स्वर्ग में लेकर चले When गए। you read these two verses, you understand the fact that he went to heaven.
और जब आप इन दो वचनों को पढ़ते हैं तो आप इस सच्चाई को जानते हैं कि वो स्वर्ग में उठा लिया The गया। idea is God has made that place ready for his children. विचार यही है कि परमेश्वर ने अपनी संतानों के लिए इस जगह को तैयार करके रखा है। In the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 1, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 1 में हम देखते हैं, now we know that if the earthly tent we live is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी See है। what an amazing information we have about heaven here. स्वर्ग के बारे में यहाँ पर कितनी अद्भुत जानकारी It है। is a house God is building. ये ऐसा घर है जो परमेश्वर बना रहे हैं। It is a house not built with human hands, ये ऐसा घर है जो मनुष्यों के हाथों से नहीं बना है, but definitely it is available for us, और निश्चय ही ये तो हमारे लिए उपलब्ध है and we have a longing for that. और हम इसके लिए बड़ी लालसा करते हैं। You know, every time God promised blessings to the ones He called, all of them had in mind something beyond the physical world. जब भी परमेश्वर ने जिन लोगों को बुलाया उनके बारे में आशीष कही तो उन सभी लोगों में इस संसार से परे आशीष You know, when की He कल्पना called थी। Abraham, He said, I will give you this promised land. और जब उसने अब्राहम को बुलाया तब उसने उससे कहा कि मैं तुम्हें ये प्रतिज्ञा का देश But the देता book हूं। of Hebrews very clearly says in the 11th chapter that he lived in tents. इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 बहुत ही स्पष्ट रूप में बताती है कि वो तंबुओं में रहता For था। many years he lived in tents. कई कई साल तक, कई बरसों तक वो तो तंबुओं में He रहता was था। like a nomad moving around. वो तो एक मुसाफिर था, हर जगह पर यात्रा करते रहता था। But his heart had hope in something better. लेकिन उसके हृदय में उससे बेहतर चीज के लिए बड़ी आशा Not थी। just Abraham, all the people who had faith had something better in their mind when they were longing for this heaven. केवल अब्राहम ही नहीं, लेकिन हर एक मनुष्य में उनके हृदय में बहुत ही उत्तम की अपेक्षा थी जब वो स्वर्ग की लालसा करते थे। You know, the writer of Hebrews clearly states about this faith. जानते हैं इब्रानियों का लेखक इस विश्वास के बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप में In the बताता है। 11th chapter, verses 10, and then I want to read verse 16 as well. Because of time, we are not reading all the verses, but only these two verses in that section. इब्रानियों अध्याय 11 वचन 10 में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और फिर आगे वचन 16 भी यहाँ पर He said, पढ़ते For he हैं। was looking forward to the city with foundation, whose architect and builder is God. That is 10th verse. वचन 10, क्योंकि वो स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। Also, after describing about Sarah and her faith in the 16th verse, instead they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. और फिर उसके विश्वास और सारा के विश्वास के बारे में बताने के बाद में वचन 16 में वो आगे इस तरह से कहता है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। So, when you see there very clearly, all these verses point to the fact that God is preparing this place. God is preparing this city. God is preparing this, what He has promised, many rooms for us. And that place is what we are longing for. और जब इन सारी बातों के बारे में बताने के बाद वो ये कहता है कि परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं। परमेश्वर यहाँ पर हमें प्रतिज्ञा देते हैं कि हमारे लिए वहाँ पर बहुत सी जगह तैयार करके रखी है, हमारे लिए वो जगह तैयार की हुई है। This world, as parents, father, mother, we feel like, oh, we should build a house. आप जानते हैं संसार में माता पिता होने के नाते हम यही सोचते हैं कि हमारा अपना घर We होना should leave चाहिए, it for our children. हमें उसे अपने बच्चों के लिए छोड़ जाना They should चाहिए, have a very good house. उनके पास बहुत अच्छा घर होना Shall I चाहिए। tell you, our Heavenly Father is promising that He is preparing a beautiful place, not built with human hands. हमारे स्वर्गीय पिता भी इसी की प्रतिज्ञा करते हैं, सुंदर जगह के बारे में कहते हैं जो कि मनुष्यों के हाथों से नहीं बना And the है। second thing I want to leave with you about heaven is that it is experiencing God personally, or being in God's presence. स्वर्ग के बारे में दूसरी बात बताऊं, यहाँ पर परमेश्वर का हम अनुभव करेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने You रहेंगे। know, when I think about this, I am reminded of what happened in the book of Genesis.
जब मैं इसके बारे में कहता हूं तो उत्पत्ति की किताब के बारे में एक बात मुझे याद In the आती book है। of Genesis, chapter 3, when God created Adam and Eve and left them in the Garden of Eden, उत्पत्ति अध्याय 3 में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाकर उस वाटिका में रख दिया था, Bible says God was walking in the garden in the cool of the day. बाइबल कहती है कि सांझ के समय, संध्या के समय परमेश्वर वहां पर You चलते know how थे। nice it would be to spend time with God, talking to God face to face, enjoying His presence. ये कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर के आमने सामने होकर उससे बातें करें, उसकी उपस्थिति का आनंद Oh, उठाएं। Adam and Eve had such a blessing. आदम और हवा के पास में इतनी महान आशीष I थी। believe heaven is going to be something like that, experiencing God's presence, seeing God face to face, and enjoying His company. मैं विश्वास करता हूं कि स्वर्ग कुछ ऐसा ही होगा जहां हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करेंगे, परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे, उसकी संगति का आनंद The book उठाएंगे। of Revelation gives a beautiful depiction of how heaven will be like. प्रकाशित वाक्य की किताब हमें एक सुंदर चित्र देती है कि स्वर्ग कैसा होगा। Revelation chapter 7 verse 9. प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 9 इसके बारे में हमें He's talking बताता about a है। multitude of people who are seen. ये वहां पर दिखाई देने वाली बड़ी भीड़ के People बारे of में every बताता है। nation, every tribe, and every language standing before the throne. वहां पर परमेश्वर के सिंहासन के सामने हर एक देश, हर एक जाति, हर एक भाषा बोलने वाले लोग And होंगे they were all praising God. और वो सब परमेश्वर की They स्तुति were wearing करेंगे। white robes with palm leaves in their hand. वो श्वेत वस्त्र पहने हुए अपने हाथों में खजूर की डाली लिए And रहेंगे। in the same chapter, 15th verse, one of the elders asked, "Who are these people?" And John's response was, "Oh, you know, Lord." और इसी अध्याय में वचन 16 में जब एक प्राचीन ने पूछा कि ये लोग कौन हैं, तो इसके लिए यूहन्ना का प्रत्युत्तर यही था कि प्रभु आप खुद जानते He हैं। said, "They have come out of great tribulation. और उसने कहा कि ये तो उस महान क्लेश में से आए They are हैं before the throne of God. और ये तो परमेश्वर के सिंहासन के सामने थे, इस तरह कहता They है। serve Him day and night in the temple, in His temple." ये तो परमेश्वर के भवन में दिन और रात उसकी सेवा करते हैं, इस तरह उसने जवाब दिया। And He who sits on the throne spreads His tent over और them. जो सिंहासन पर विराजमान हैं, वो अपना तंबू उन पर Oh, फैलाए what a हैं। great privilege, my friends, ये महान सौभाग्य है to be दोस्तों with God, कि परमेश्वर के to be in साथ His हो, presence. कि उसकी उपस्थिति में That हो। is the kind of longing we have, हम यही तो मनसा करते going to हैं be a place like that. कि ये ऐसी जगह And होगी। finally, I want to tell you, only those who obey His commands can enter into this heaven. और अंत में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि केवल वही लोग जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं वही स्वर्ग में प्रवेश कर In the पाएंगे। Gospel of Matthew, chapter 7, verse 21, Jesus says like this, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but only one who does the will of my Father who is in heaven." मती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 21 में प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमें You बताया know, है। Jesus is expecting this very, very important requirement in all of our lives, that when you believe Him, when you come to Him and say, "Oh Lord, I am willing to obey you, I am willing to obey your commands, I am willing to follow you," then you can go to heaven. जब आप इस बात को मानते हैं, जब आप इस तरह से कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी आज्ञा को मानने के लिए तैयार हूं, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार करूंगा, जब आप इस तरह से करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तभी आप स्वर्ग में जा What सकेंगे। does He ask of you? और प्रभु आपसे क्या मांग करते Dear हैं? friends, He came into this world to die for your sins. मेरे दोस्तों, वो इस संसार में आपके पापों के लिए He is the मरने Son आए। of God. वो तो परमेश्वर He के पुत्र died हैं। and gave His life, उसने मरकर अपनी जान दे and He दी was buried and rose again on the third day. और वो गाढ़े गए और वो तीसरे दिन जी He उठे। said, "If you believe me, you will be saved." उसने कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम उद्धार When पाओगे, you are saved, you will obey my commandments. और जब तुम उद्धार पाओगे तो तुम मेरी आज्ञा When मानोगे। you obey my commandments, your life will be better, both in this world and in the world to come.
और जब तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो तुम्हारा जीवन बेहतर होगा, इस संसार में भी और आने वाले You संसार know, में the भी। invitation to enter into heaven is open for all. जानते हैं स्वर्ग में आने का न्योता तो सभी लोगों के लिए खुला है, ये सब लोगों के लिए खुला है, But you need to respond. लेकिन आपको इसे प्रत्युत्तर देना होगा, आपको इसे स्वीकार करना होगा। You know, sometimes you will notice in the invitations, sometimes wedding invitations, some very important functions, you would have noticed this RSVP. आप जानते हैं जो न्योता होता है उसके अंदर कई बार इस रीति से लिखा होता है RSVP। It is basically a French expression of please respond or please reply. ये तो एक तरीके से फ्रेंच में बताना है कि कृपया करके आप इसे प्रत्युत्तर दीजिए। And according to me, that invitation is given to all, but you need to respond, you need to reply. मैं यही कहूँगा कि ये न्योता तो सभी लोगों को दिया गया है, लेकिन आपको इसे प्रत्युत्तर देना होगा, आपको इस न्योते को स्वीकार करना होगा। One other thing I have noticed in such invitations, ऐसे न्योते में एक और बात जो मैंने यहाँ पर देखी है, sometimes it is written RSVP regrets only. और कई बार लिखा होता है कि RSVP regrets only, इस तरह से न्योते में लिखा होता है। And only if you are not able to come, you say. अगर आप वहां पर नहीं आ सकते हैं, इस तरह से अगर आप कहते And हैं, this invitation, you know, you can say, yes, I am coming. That opportunity is given to you. नहीं, लेकिन इस न्योते के लिए आप कह सकते हैं कि हाँ मैं आ रहा हूं और आपको ये मौका दिया गया है। He wants all of you to come. प्रभु चाहते हैं कि आप He सब आए। created heaven for you. उसने आपके लिए स्वर्ग बनाया And है that is his desire. और यही तो उसकी इच्छा May है। God give you his grace so that all of us together who believe in him shall rejoice in heaven and praise him forever and ever. परमेश्वर आप पर यह अनुग्रह करे ताकि हर एक व्यक्ति जो उस पर विश्वास करता है वो स्वर्ग में आनंद मनाए और वहां पर हमेशा के लिए रहे। May God bless you and your family today. परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number